हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं काफ़ी दिन बाद ऑनलाइन आप लोगों के साथ हो रही हूँ फेस टू फेस। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नेवर हर्ट एनी वन सोल। ओके, जब आप किसी के आत्मा को दुख पहुंचाते हैं ना, तो उसकी कर्म की सज़ा तो आपको मिलती है। क्योंकि होता है क्या है ना कि हमारे अच्छे किए हुए कर्म कब ख़त्म हो जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता है। तो अपने कर्म को अच्छा रखिए। अगर आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बन रहा है, तो एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बट डोंट हर्ट एनीवन। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल तो ऐसे कोई रिश्ते टिकते नहीं, वो चाहे जो भी रिश्ते बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, सेक्रीफाइस के साथ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोशिश कीजिए कि जो रिश्ते हैं उसे अच्छे से बना के रखें, लेकिन छल कपट के साथ किसी रिश्ते को आगे मत बढ़ाइए। क्योंकि आप सोचते कि हाँ, हमने कर्म अच्छे किए हैं, बट हर कर्म, अच्छे कर्म की आपको अच्छी रिज़ल्ट भी मिलती है, बुरे कर्म की रिज़ल्ट भी मिलती है। तो अच्छे कर्म जब ख़त्म हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका अच्छे पुण्य कब ख़त्म हो गए हैं, और उसका जो आपको थप्पड़ मिलेगा ना, वो बहुत ही भारी और बहुत ही भयंकर दर्दनाक होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी सोच रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी मत कीजिए, और हमेशा किसी पे शक मत कीजिए, क्योंकि शक से अच्छे अच्छे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। मैं जब कुछ अच्छा रीड करती हूँ तो मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना पसंद करूँगी। हाउ टू कंट्रोल योर नेगेटिव इमोशंस, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बिना दूसरे पे डिपेंड हुए। We must have these four sorts of ideas. We must have friendship for all. We must be merciful towards those that are in misery. When people are happy, we ought to be happy, and to the wicked, we must be indifferent. So, with all subjects that come before us, if the subject is a good one, we shall feel friendly towards it. If the subject of thought is that one that is miserable, we must be merciful towards it. If it is good, we must be glad. If it is evil, we must be indifferent. These attitudes of the mind towards the different subjects that come before it will make the mind peaceful. Most of our difficulties in our daily lives come from being unable to hold our minds in this way. For instance, if a man does evil to us, instantly we want to react evil. Obviously, हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम भी बुरा ही सोचते हैं उसके बारे में. And every reaction of evil shows that we are not able to hold the chit down it. It comes out in waves towards the object and we lose our power. Every reaction in the form of hatred or evil is so much loss to the mind, and every evil thought or deed of hatred or any thought of reaction, if it is controlled, will be laid in our favor. It is not that we lose by thus restraining ourselves, we are gaining infinitely more than we suspect. Each time we suppress hatred or a feeling of anger, it is so much good energy stored up in our favor that piece of energy will be converted into the higher powers. Every vicious thought will rebound. Every thought of hatred which you may have thought in a cave even is stored up and will one day come back to you with tremendous power in the form of some misery here. If you project hatred and jealousy, they will rebound on you with compound interest. No power can avert them. When once you have put them in motion, you will have to bear them. Remembering this will prevent you from doing wicked things. I may remark that this idea explains the ethical theory that you must not hate and must love. Because just as in the case of electricity, the modern theory is that the power leaves the dynamo and completes the circle back to the dynamo, so with hate and love, they must come back to the source. Therefore, do not hate anybody, because that hatred which comes out from you must in the long run come back to you. If you love, that love will come back to you, completing the circle. It is as certain as can be that every bit of hatred that goes out of the heart of a man comes back to him in full force. Nothing can stop it. Similarly, every impulse of love comes back to him. ये तो बात सच है, आप जो देंगे, जैसा देंगे, वैसा आपके पास वापस आएगा। इसी को कहते हैं कर्म। अगर आपके साथ कुछ भी लाइफ में हो रहा है तो डोंट ब्लेम अदर्स, इट्स योर कर्म। अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो वो मेरे कर्म है, पिछले जन्म के, इस जन्म के। और हमेशा ये सोचिए कि जो हो गया सो हो गया, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, सो डैट इन फ्यूचर में मुझे किसी तरह का बैड फेज़ ना फेस करना पड़े।
द ग्रेट सीक्रेट इज एब्सेंस ऑफ जेलेसी। सीरियसली, कभी किसी को देख के जलिए मत, चाहे किसी का अच्छे रिलेशनशिप हो, किसी का प्रोग्रेस हो जॉब में या स्टडीज़ में। आप वैसे बनने की कोशिश कीजिए, आप अपने रिलेशनशिप को वैसा बनाने की कोशिश कीजिए। गंदी नज़र मत लगाइए, सीरियसली जेलस मत फील कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। अगर आप ब्लेसिंग्स देंगे तो आपके पास भी ब्लेसिंग्स ही लौट के आएंगे, और जेलस फील करेंगे तो आपके पास भी जेलस ही आएगा। Be always ready to concede to the opinions of your brethren and try always to conciliate. That is the whole secret. Fight on bravely. Life is short. Give it up to a great cause. Seriously, life is short. अगर देखा जाए तो अभी तो आने वाले टाइम पे और लाइफ लोगों की शॉर्ट हो गई, जैसे खान पान स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो ट्राई टू लिव अ हैप्पी लाइफ, बी स्ट्रेस फ्री। कहना बहुत ईजी है, बट कोशिश तो हमें ही करना है और कोई नहीं कर सकता है। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक विद आपकी नई सुबह का सूरज। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट जो वीडियो था उसमें फ़िल्मों में विजुअलाइजेशन मैंने बताया था। ओके, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। आपकी नई सुबह का सूरज, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। आपकी नई सुबह का सूरज, जब से आपने इस वीडियो को आपने देखा है तब से आपको एक जानकारी ज़रूर मिली होगी विजुअलाइजेशन के विषय में। आपने जो कुछ जानकारी हासिल की है वह मात्र ज्ञान में वृद्धि करने के लिए या जानकर खुश होने के लिए नहीं है। ज्ञान में वृद्धि करना मतलब कि अपने नॉलेज को बढ़ाइए और प्रायोरिटी देखिए कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन कीजिए। आपकी लाइफ में ज़रूरी क्या है उसको विजुअलाइज़ कीजिए। स्पेसिफिक फॉर यंगस्टर्स, विजुअलाइज फॉर योर करियर, फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर गोल्स। पैसा है तो सब कुछ है, वही हेल्प करेगा, वही आगे बढ़ाएगा। मेहनत कीजिए। डोंट लव आई मीन टू से डोंट रन आफ्टर द रिलेशनशिप। जब जहाँ जो किस्मत में लिखा होगा वो मिल ही जाएगा, बट अपना करियर बनाएंगे। विजुअलाइजेशन नाम की यह तकनीक ऐसी है जो आपके जीवन में मनचाहा बदलाव ला सकती है। इस तकनीक का आज और अभी से रोज़ उपयोग करने की शुरुआत करो। आप में अद्भुत शक्तियाँ छिपी हुई है। इन शक्तियों के उपयोग से आप बहुत अच्छी तरह से उच्च गुणवत्ता वाली ज़िंदगी जी सकते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में खूब प्रगति कर सकते हैं। इन शक्तियों की पहचान और उपयोग के द्वारा हम अधिक से अधिक विकास कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी मनुष्य है। मनुष्य के भीतर सबसे शक्तिशाली उसका मन है और मन में भी सबसे शक्तिशाली उसका अर्धजागृत मन है। अर्धजागृत मन की शक्तियों के विषय में अज्ञानतावश अधिकांश लोग इसका खास उपयोग नहीं कर सकते हैं और मन की यह अमूल्य शक्ति बगैर उपयोग के बेकार पड़ी रहती है। इतना ही नहीं, इन अगाध शक्तियों का भंडार होने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण दुख भरी या बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जीते रहते हैं। हमारी जो ये वीडियो है मन और जीवन में समझाया गया है कि हमारा अर्धजागृत मन अत्यधिक उपजाऊ भूमि जैसा है और जो बीज मिलता है उसे वह उगाती है। बीज आम का हो या बबूल का, यह देखने का काम जमीन का नहीं है, वह तो केवल उगाना जानती हैं। सोमवार से शनिवार तक बबूल की बोवनी करना और रविवार को भगवान के मंदिर में आम की मांग करना कोई समझदारी नहीं है। अपने सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यक सभी साधन और सामग्री हमारे अंदर ही रख दी गई है। कई लोग इन शक्तियों को पहचान लेते हैं और कुछ आजीवन भी नहीं पहचान सकते। जो लोग इन शक्तियों को पहचान लेते हैं वे गरीब परिवार में गुजर बसर करने के बाद भी खूब उन्नति करते हैं, और जो इन शक्तियों को पहचान नहीं पाते वे अमीर परिवार में पलने बढ़ने के बाद भी ज़िंदगी में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। अपनी प्रगति का आधार अपने आसपास क्या है उस पर नहीं है, अपितु हमारे अंदर क्या है उस पर आधारित है। अपने अंदर परमात्मा का अंश होता है जो अभिव्यक्त होना चाहता है। अंतर मन में रहने वाला यह दिव्य तत्व संपूर्ण रूप से व्यक्त होने की इच्छा रखता है। अपने अज्ञान के कारण उनकी अभिव्यक्ति रुक जाए या किसी प्रकार से ठीक नहीं है। अन्य लोगों की आगे बढ़ने में रुचि हो ना हो, किंतु आपकी बात अलग है। अन्य लोग सब रोज़ की झंझटों में उलझे हैं, तब आप यह वीडियो देख रहे हैं जो इस बात को दर्शाता है कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों को लेकर जागृत हैं और ज़िंदगी को अधिकतम सुंदर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भूतकाल में चाहे जिस तरह से गुजरी हो, परंतु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी आज।
आज के पेट में ही भविष्य का गर्भ आकार लेता है। जब आप कोई विजुअलाइजेशन करते हो तब भविष्य के गर्भ की आज में स्थापना कर रहे होते हो और बाद में उसका भविष्य आकार लेकर ही रहता है। इफ़ यू विल थिंक पॉजिटिव यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। अब तक विजुअलाइजेशन की जो जानकारी आपको दी गई है उससे आपको उसका महत्व समझ में आ गया होगा। संजोगों के सृजन का सामर्थ्यधारी आपका अर्धजागृत मन आपके आदेश की इच्छा रखता है। यह आपके लिए श्रेष्ठतम जिंदगी का सृजन कर सकता है, किंतु आवश्यकता इसे स्पष्ट आदेश देने की है और इसे आदेश देने वाली भाषा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अर्थात आपको जैसे संजोग चाहिए वैसे ही संजोग चल रहे हो ऐसी कल्पना। संक्षिप्त में आँख बंद करो और आपको जो चाहिए वह मिल रहा है ऐसी भावना युक्त अनुभूति करो। विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग कहाँ और कब किया जा सकता है? विजुअलाइजेशन का तकनीक का उपयोग करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, समस्या से बाहर निकलने के लिए अथवा सुखी जीवन को और अधिक सुखी बनाने के लिए। तो अब हम दोनों विषय के बारे में बात करेंगे। समस्याओं से बाहर निकलने के लिए अगर आप किसी समस्या से घिरे हुए हैं तो रोजाना की उठक पटक में छोटी बड़ी दोनों तरह की समस्याएं आती रहती हैं। इनमें से बाहर निकलने के लिए आप विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। ये समस्या किस प्रकार की हो सकती है यह जान लें, जिससे आपको प्रत्येक का विस्तृत रूप से ध्यान आए। ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, नॉर्मल नहीं होता। मेरे पति मुझे बात बात में डांटने लगते हैं। मैं अपने ग्राहक को बराबर समझा नहीं सकता। मुझे अच्छे अंक चाहिए किंतु पढ़ने में रुचि नहीं है। उधारी के रुपये वापस नहीं मिलते। मधुमेह नियंत्रण में नहीं आता। मेरी पत्नी कुछ भी नहीं समझती। प्रतियोगिता के कारण अधिक काम करना पड़ता है। तैयार किए गए उत्तर परीक्षा के समय भूल जाते हैं। काम के हिसाब से दाम या पैसे नहीं मिलते। बेचैनी, गैस, एसिडिटी की तकलीफ़ रहती है। मेरे घर में किसी को भी मेरी कदर नहीं है। स्टाफ के लोगों का सहयोग नहीं मिलता। गणित मुझे बहुत कठिन और अरुचिकर लगता है। परीक्षा में क्या होगा? पैसों की हमेशा तंगी रहती है। संतान को समझा समझा कर थक गए, कब सुधरेंगे? जैसी नौकरी मुझे चाहिए वैसी कब मिलेगी? पिताजी समझते क्यों नहीं? रात देर तक नींद आती नहीं, सुबह जल्दी उठा जाता नहीं। बहुत प्रयत्न किए पर यह आदत छूटती नहीं। जैसा जीवन साथी मुझे चाहिए वैसा मिलता नहीं। कार खरीद सकूं इतनी आय नहीं। काम में रुचि नहीं रहती। काम आधा रह जाता, बाद में तनाव बढ़ता है। चाहे जितने प्रयास कर ले वजन घटता ही नहीं। स्वयं का मकान खरीदने के लिए पैसों की व्यवस्था नहीं होती, इत्यादि। सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम है। बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब आगे ध्यान से सुनिए। इसके अलावा भी दैनिक जीवन में जो समस्या आपके ध्यान में आती है उसके निराकरण के लिए विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। समस्या चाहे कितने भी विकराल हो, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। विजुअलाइजेशन इन समस्याओं से बाहर आने में आपकी सहायता करेगा, सुखी ज़िंदगी को और अधिक सुखी बनाने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी तरह से सुखी हो, फिर भी विजुअलाइजेशन ऐसा है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप चाहे कितने भी सुखी हो किंतु आपको उससे भी अधिक सुख मिल सकता है, अधिक शांति मिल सकती है। कई लोगों को सुखी बनाने में आप भी निमित्त बन सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। आप में अधिक सुखी बनने की सभी संभावनाएं विद्यमान हैं। विजुअलाइजेशन इन सब संभावनाओं को उजागर कर बाहर लाकर अपना लक्ष्य पूर्ण करने में या प्राप्त करने में आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। किस तरह? आरामदायक जीवन जीने के लिए अपने व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हेतु, जीवन भर स्वस्थ चुस्त दुरुस्त फुर्तीला रहने के लिए, आदर सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए, हाँ, जीवन का जो परम लक्ष्य है वह है आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए और एक अच्छा लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, पीसफुल लाइफ जीने के लिए। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर निकला है। आपकी ज़िंदगी को नवीन दिशा देने के साथ ही साथ यह साधन भी उपलब्ध कराता है और वह साधन विजुअलाइजेशन है। इन साधन का उपयोग आपको करना है। सही ढंग से उपयोग करोगे तो परिणाम मिलेंगे ही। हम यह इसलिए जानते हैं कि विजुअलाइजेशन के परिणामों का हम भी बार बार अनुभव करते हैं। सभी अनुभवों को लिखे तो एक पुस्तक तैयार
हो जाएगा। आइए 2-4 अनुभवों की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं जैसे कि आप लोगों को पहले ही बोली हूँ कि मैं संदीप महेश्वरी सर, जय किशोरी मैम की वीडियो, एनबीके शिवानी मैम की वीडियोस देखती हूँ और उससे मैं काफ़ी हाईली मोटिवेट होती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी इनकी वीडियोस देखिए। और अगर लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा परेशान हैं तो प्रेम आनंद महाराज जी की वीडियो देखिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देगी। आपको आपके लाइफ से रिलेटेड आधे से ज़्यादा परेशानियों के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे कहते हैं ना, रामायण में सबका उत्तर है, गीता में है, तो उसी तरह आप अगर प्रेम आनंद महाराज जी जो बहुत ही जेन्युइन और प्रैक्टिकल बात करते हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मतलब सीरियसली ऐसा लगता है कि भगवान ने इन्हें कलयुग के लिए ही भेजा है इस दुनिया में, हम सब के लिए। आप अगर उनकी बात को ध्यान से सुने तो आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ नहीं है, भगवान ने जो दिया है बस मेहनत करो और उसे अचीव करने की सोचो, ना बुरा सोचो ना बुरा करो, और किसी ऐसी चीज़ के पीछे मत भागो जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंच रही है। एंड अपने कर्म अच्छा रखो। वो एक बात बहुत अच्छे बोलते हैं, जो आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आप दूसरों को ब्लेम करना और लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे कि सब हमारा कर्म है, हम जो करते वो हमारा कर्म है, हमें दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम जैसा किए हैं वैसा पा रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम अपना हर दिन एक नया कर्म, हर पल हम जब बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, मन में सोचते हैं, तब भी हम एक नए कर्म को करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि लाइफ में जब भी मौका मिले किसी की मदद करने की तो ज़रूर मदद कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मदद करना। अपने आप को बहुत बलवान मत समझिए, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई बलवान नहीं है। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, कर्म बहुत बलवान होता है। आपके अच्छे कर्म, आपके बुरे कर्म ही आपका बल होता है। एंड बलवान किसे कहते हैं? अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है और आप उस चीज़ को सह लिए तो आप बलवान हैं। तकलीफ़ देने वाला बलवान नहीं है। वो तो अपनी किस्मत लिखा है, उसने जैसा किया है उसे तो इस दुनिया में पाना ही पाना है, इस जन्म में ही पाना है। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में भी किसी को तकलीफ़ दे रहे तो किसी न किसी रूप में तो सामने आता ही है। बस यही है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये मेरा कर्म है। आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो है आपका अपना मन। आप जो भी करते हैं ना, आप दुनिया से जितने भी झूठ बोल लीजिए, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपके मन में वो सारी चीज़ें रहती हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। और पता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें अपनी गलती दिखती नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनसे गलती हुआ है। और ये जो ईगो है ना, ये बहुत ख़राब चीज़ है। मैं सबको, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरे पहले के वीडियोस को लाइन बाय लाइन जाकर स्टेप बाय स्टेप देखिए। पता है, ये दुनिया में ना कुछ नहीं रखा है। कब किसकी आँख बंद हो जाएगी ना, उसके बाद ना ये बॉडी वर्ड यूज़ किया जाता है। ये भी नहीं कहा जाता माँ है, पापा है, भाई है, बहन है, जो भी रिश्ता है, आपका नाम भी नहीं लिया जाता है। तो इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। जब एक बार आँख बंद हो जाएगी ना, तो उसके बाद कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते। इससे जीते जी अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। एंड कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों की मदद करें तो गुप्त रूप में कीजिए, किसी को पता ना चले। खासकर अगर आप गरीब की मदद कर रहे हैं तो किसी को बोलिए मत कि आपने मदद किया है। हाँ, अगर आप शेयर भी करते हैं तो इससे हो सकता है कि शायद कुछ लोग और देख करके शेयर करें। बट आजकल बहुत से लोग हैं जो ये सब समझाते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है। मतलब कि गरीब लोग को जब वीडियो बनता है, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ठेस पहुँचती होगी। बहुत सी चीज़ें जो आप लाइफ के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, गुप्त दान कीजिए, किसी को पता ना चले कि आपने दान किया है, क्योंकि फिर उस दान का कोई असर नहीं होता है। और दिल से दान कीजिए, दिखावे के लिए ये सोच के कि अच्छे कर्म करने हैं, नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे ना, तो भगवान आपकी ज़िंदगी में शांति देगा, सुखी देगा। आपको रात में शांति से नींद आएगी, आप सुकून से सो पाएंगे, ना कि आपका मन बेचैन और परेशान रहेगा। तो आपके कर्म के अनुसार आपको फल तो मिलेगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो आप दिल से मदद कीजिए। दिखावे के लिए अच्छे कर्म होंगे इसके लिए नहीं, मन से कीजिए। आप लोगों को भगवान ने हर किसी को जितना दिया है ना, उसमें आप थोड़े से तो कर ही सकते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कम है फिर भी देते। दिल होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए। तो अगर आप अपने महीना के, एक बात बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि 40,000 रुपये सैलरी है और आपने महीने के 400 रुपये किसी गरीब के पीछे खर्च कर दिए ना, तो आपने
नहीं किया, वो भगवान ने आपके थ्रू करवाया, तो वो आपके अच्छे कर्म में ऐड होंगे, आपके परिवार को उसकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।